Okay, I guess we are live. Assalamu alaikum, guys. My name is Anam Farouk, and I'm the student of FNED University Civil Engineering Department. And we have a very special guest with us today, who is related to UN from a long time, who is International Goodwill Ambassador, Global Goodwill Ambassador, and also SDG advocate and activist. He's also nominated for the best SDG 4 Advocate of the Year by Ghana. Assalamu alaikum, Fawad bhai. सबसे पहले, how are you? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inam, thank you so much for inviting me for this great platform. And in fact, I am very much thankful for your society or foundation or association आपका है, National Dialogue on Climate Change. It's a great opportunity, I must say. Thank you so much that you guys have given me a platform, and of course give me another, I would say, like an opportunity to share my expertise. It's another expertise because again it's a part of also learning for me as well. Thank you very much once again. Pleasure is all ours. We are honored to have you. So I'll be asking, क्या है कि हमारा agenda है to encourage the youth, to engage youth in sustainable development goals, which are set by UN. So my first question is gonna be very basic. कि what are sustainable development goals? Because many of our viewers doesn't know that what are SDGs, what are sustainable development goals. So we'll start with like that. Okay, what are these, by the way? Okay, fine. I must say, like, it's an amazing thing. It's like wonderful that entire member states of United Nations, like 193 member states, are organized, and they come up with a proper framework, and they have set in you can say 2015 that there should be like proper adoptable and possible goals with the proper targets. Okay, and the entire, you can say, the tenure was from 2015 till 2030. So we are in 2020 right now. Okay, we have still 10 years to go for that. The reason, like, why is it all came forward and was it because the entire world is actually facing the issue of environmental threat, such as global warming, and then loss of biodiversity, or even though move on to the inequalities issues between rich and the poor among the entire member states. So it is something of really wonderful that the entire 190 countries is actually adopted precisely on those things, and that's what you have. The Sustainable Development Goals, which was actually adopted in 25th September 2015. थोड़ा सा मैं इसके अंदर प्रिसाइजली लेकर जाऊंगा क्योंकि every goal is very very important for us. Like if you talk about nations to nations, if you talk about the civil societies, if you talk about from the government level side, like let's have a look into that, like SDG 1 that clearly says about like to end extreme poverty by 2030, and then SDG 2 is talk about the ending extreme hunger actually, then SDG 3 ensuring universal access to health services, SDG 4 is ensuring about I'm really sorry to cut you, but I would appreciate अगर हम थोड़ा उर्दू और English को थोड़ा like if you can go in Urdu because this is national. Yes, I can try for it. Okay, so thank you a lot. Thanks a lot. as no worries at all. जैसे मैंने आपको ये बताया कि फिर आपके सामने SDG 4 आता है, that is purely about like ensuring universal access for all children to, यानी तमाम students कहें या तमाम यूथ के हवाले से कहें एजुकेशन परस्पेक्टिव, बिकॉज दिस इज़ ये मेरा एक फेवरेट भी गोल है. SDG 4 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल, विच एक्चुअली शेज के इंश्योरिंग ऑफ अबाउट यूनिवर्सल एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, क्वालिटी एंड इक्वालिटी एजुकेशन. तो ये 4 मेनली जो गोल्स हैं, ये आपके पास जो एक्सट्रीम लेवल पे आज इंटायर वर्ल्ड के अंदर जो कॉजेज़ हैं इस तरीके से गए. फिर अगर आप थोड़ा सा और मूव करते हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, जैसे सोशल नॉर्म्स हैं, टैबूज हैं, या यू कैन से कुछ कंट्रीज़ के दरमियान या कुछ लोकेलिटीज़ के दरमियान या ख़ासकर रूरल साइड के दौरान ये बहुत सिग्निफिकेंटली यू कैन से एक सोशल ऑब्जेक्टिव है. जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम SDG 5
5 की बात करूं मैं, तो दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी, या SDG 10 आगे हम चलते चले जाएं, दैट इज़ अबाउट मोर नैरिंग इनइक्वालिटीज़ विद इन कंट्रीज़, और यू कैन से अक्रॉस कंट्रीज़ जो इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन का जो इशू आता है. देन मूविंग टू दैट SDG 13, that is again I mean one of the biggest and the significant right now is the issue of the climate change जो पूरी दुनिया में है. और इवन दो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के भी हिसाब से, लाइक इफ़ यू जस्ट गो बैक लाइक कपल ऑफ मंथ्स बिफोर, जो साल हमारे पास या जो मंथ हमारे पास थोड़ा सा गर्मी के हवाले से आता था, उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जो है वो इंटेंसिटी जो है वो थी ठंडक की. सो इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट चेंज. बहुत से ऐसे कंट्रीज़ थे, आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक अरब कंट्रीज़, वहाँ पर इवन दो स्नो भी हुई थी. सो दीज आर, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक एरिज़ोना, या फायर का बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू आया था. सो दीज ऑल आर इफेक्ट्स of climate change, very significant, I would say that SDG 13. Then 14 और 15 जो है वो आपकी बात करता है protect ecosystem के हवाले से, like precisely 14 is about the protect the ocean and marine ecosystem के हवाले से बात करूँ, यानी कि जो समंदर के हिसाब से या जो अंडर वाटर इश्यूज़ है, या जो इशू आपका पॉपुलेशन है, जैसे राइजिंग सी लेवल है, ख़ासकर ये इश्यूज़ उनके पास आते हैं जो आप कहते हैं आइलैंड कंट्रीज़ के हवाले से. राइजिंग सी लेवल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजिंग राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स इट्स पर्टेनिंग टू द SDG, वन ऑफ द SDG गोल एज वेल. एंड देन मूविंग इनटू SDG 15 जो कि आपकी बात करता है प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के हवाले से. एंड देन टू द 17 विच इज़ अगेन इज़ वन ऑफ my favorite as well, to having a global partnership like the countries, like all 193 countries, तमाम जो UN के members हैं, 193 members हैं, they should actually have a proper they should have a proper synergies, actually a global partnership in order to achieve the entire sustainable development. So it is something really amazing. I mean, it is my personal opinion that SDG is an amazing you can say objectives and the targets in like from last 15 years, and then we have another 10 years ahead now. So hopefully we will definitely work into that. That's how the SDGs actually work into. Okay, Fawad bhai. So my next question is कि firstly कि जो हमारा ये forum है, this is basically on climate change, which is one of the SDGs as you mentioned, and which is a growing problem सारी दुनिया में. So we'll be keeping it whole कि ये SDG से basically सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो developing countries को होगा. Like basically this is for developing countries, and 90% of youth of the world is in developing countries. So I would like to ask you कि जो SDGs achieve करने में यूथ का इस वक्त कितना रोल है? लाइक हाउ मच यूथ मेरे जैसे आपके जैसे आर इन्वॉल्व्ड इन अचीविंग दीज SDGs? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की आपने इनाम. मैं कहता हूँ कि और ख़ासकर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, आपको पता है तकरीबन 27% के हिसाब से 27% जो है वो तकरीबन 0 से 15 इयर्स का हिसाब है, और अराउंड 60 to 65 के दौरान जो है जो वो 15 to 30 इयर्स ओल्ड का हिसाब का है. और मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद आई, एक बड़ा अच्छा फ्रेज़ था जो कि पैराग्राफ 53 कहलाता है. जब ये एजेंडा 2030 की बात की गई थी, उसमें बहुत अच्छा फ्रेज़ है, वो लिखा था कि द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑफ आवर प्लानट इन लाइज इन आवर हैंड, and it lies also hands of today's younger generation who will pass the torch to the future generation. So यहाँ से जब ये 2030 एजेंडा सेट किया गया था, 2015 SDGs को अडॉप्ट करने के दौरान, पैराग्राफ 53 में आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, एनीवन कैन गो एंड हैव अ लुक इनटू दैट. तो शायद ऊपर नीचे क्योंकि ये फ्रेज मुझे एकदम से याद आई इस हवाले से. तो नो डाउट यूथ का बहुत बड़ा रोल है,
बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मैं आपको इतना बताऊं कि 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स के अंदर 6 गोल्स और टोटली इस आई मीन जितने भी उनके टारगेट्स हैं या उनके इंडिकेटर्स हैं वो प्रिसाइजली जो है वो यूथ के हवाले से बात करते हैं। यानी कि 17 गोल्स हैं और उसके अंदर अगर 6 गोल्स अगर आप सिर्फ यूथ के फोकसेस या यूथ एम्पावरमेंट की बात करें तो ये आपके 1/3 हो जाता है एसडीजीज के हवाले से। फिर आप आगे चलें, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि गोल नंबर 2 है जिसके अंदर आप बात करते हैं हंगर के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर टारगेट 2.2 और उसका इंडिकेटर 2.2.1 और 2.2.2 ये जो है वो यूथ के ऊपर एम्फेसाइज करता है। फिर आ जाइए जो कि मेनली फोकस किया गया है क्या बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अंदर डेफिनेटली रूल का एक यूथ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और यूथ के एम्पावरमेंट की बहुत सारी बात की थी। तो गोल नंबर 4 जो एसडीजी का एजुकेशन है उसका टारगेट नंबर 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 स्पेसिफिकली खासकर, और इवन 4.5 के अंदर तो इंडिजीनियस चिल्ड्रन खासकर विनेबल सिचुएशंस के हवाले से। और फिर उसके अंदर इंडिकेटर्स जो बताए गए हैं, क्योंकि आपको पता है एसडीजीज इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपके पास टारगेट्स हैं और फिर उसके इंडिकेटर्स हैं कि उसको बताया गया है, उसको रेशियो किया गया है कि भाई इस चीज़ के तहत या उसका एक रोड मैप दिया गया है कि इस इंडिकेटर के तहत इनको अचीव किया जा सकता है, या इस ये KPIs हैं जैसे कि आप बात करते हैं की प्लेयर इंडिकेटर्स के हवाले से। तो SDG 4 के हवाले से मैं बात करूं तो उसके अंदर इंडिकेटर्स के अंदर की जो लिस्ट है वो 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3.1 और 4 का भी इसके अंदर है और 1 का भी है। और फिर आप बात करें SDG गोल 5 की जो कि जेंडर इक्वालिटी की है, टारगेट 5.1, 5.2, 5.3, उसके इंडिकेटर जो है वो स्पेसिफिकली 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2 और ख़ासकर पार्शली है। इस तरह से फिर गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क के हवाले से बात करते हैं, या गोल नंबर 10 जो कि इनइक्वालिटी के हवाले से, या गोल नंबर 13 इवन दो मैं कहता हूँ जो क्लाइमेट चेंज जिसके अंदर आपकी जो सोसाइटी है जो मेनली फोकस करती है, उसका जो मेन विजन है उसका टारगेट नंबर 13.3 और 13.1 जो है ये प्रिसाइजली यूथ के ऊपर है। तो आप खुद सोचें कि 17 गोल्स के अंदर ये 1/3 उसका अगर प्रॉपर तरीके से सिर्फ यूथ को फोकस किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मैं समझता हूँ कि एसडीजीज़ के अंदर कि यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है और उसको कहा भी जाता है ऑफ कोर्स के फ्यूचर लीडर्स के हवाले से। सो डेफिनेटली जितनी एक्टिव हमारी यूथ होगी और जितना अच्छे तरीके से इंकरेजमेंट तरीके से वो काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करेंगे, और बिलीव मी और नॉट मैं आपको बताऊं ये जो सारे 17 गोल्स हैं, ये सारे 17 गोल्स के अंदर जो टारगेट है 169 और अराउंड 231 इंडिकेटर्स हैं। अगर हमारी यूथ या अक्रॉस द वर्ल्ड या पाकिस्तान के हवाले से कहें हम, अगर इसके ऊपर इन 17 गोल्स के ऊपर एक एक प्रोजेक्ट्स भी बनाए तो ये 17 प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। और फिर प्रिसाइजली इन टारगेट्स की बात करें तो ये 169 एजेंडाज बन जाते हैं, 169 जो है प्रॉपर सेट्स हो जाते हैं। इजीली कर सकता है। यहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, यहाँ से रोल ऑफ यूथ जो है वो आपके सामने आता है और यूथ को इंकरेजमेंट मिलती है और उनको एम्पावरमेंट मिलती है इस हवाले से। That's what I can say. It's significantly. डेफिनेटली फवाद भाई आपकी बात है कि यूथ का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए इन SDGs। तो ऑन अ रेट ऑफ लाइक 0 to 10 आप क्या समझते हैं कि कितना नंबर पे इस वक्त यूथ इन्वॉल्व है, लाइक फ्रॉम अ रेट 0 to जस्ट अ फेयर ब्रीफ। I'm sorry, इनाम आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। I'm sorry, can you repeat your question again? I'm sorry. फवाद भाई, I was saying कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूथ की पार्टिसिपेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन अचीव SDGs। तो आप क्या समझते हैं कि राइट नाउ ऑन अ रेट ऑफ स्केल ऑफ 0 to 10 आप क्या समझते हैं कि कितना यूथ इन्वॉल्व है
like just a number to 10? अच्छा, मैं अगर इस हवाले से बात देखें, आप खुद सोचें कि जिन गोल्स को 2015 के अंदर, यानी कि आपसे आप बात कर लें, क्या बोलते हैं, 5 साल पहले जब इनको रखा गया था, जिनकी बुनियाद ही रखी गई थी, जिसमें से 1/3 जो है वो यूथ को फोकस किया जाए, सो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं इसी तरह आपको फर्दर बताता चलूँ कि यूथ इज़ राइट नाउ इज़ जस्ट लाइक अ की ड्राइवर। यूएनडीपी की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि करंटली यूथ आर द की ड्राइवर टू ड्राइव द एसडीजीज राइट। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ टू अचीविंग इन एसडीजीज। जहाँ तक स्केल की बात आई, जहाँ तक आपने कहा, मैं कहूँगा कि जो सिचुएशन और करंटली जो सर्कमटेंसेस चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे पेंडेमिक की सिचुएशन है और जिसके अंदर ज़्यादातर रेशो जो है वो आपके ओल्ड एजेस या जो एडल्टीज जितने भी हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। और अल्लाह माफ़ी दे, जो डेथ रेशो भी ज़्यादातर आ रहा है, तकरीबन 15% से 20% जो डेथ रेशोज़ आ रहा है वो कोविड-19 के अंदर जो है वो एडल्टीज का। तो फिर हु इज़ लेफ्ट एट द फ्रंट ऑफ अस? ऑफ कोर्स यूथ। और यूथ के अंदर ही जो है इसका रेशो कोई 0.1 से 0.2 के हिसाब से है, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा आई थिंक बहुत ही कम जो है वो डेथ रेशोज़ अब तक सामने आए। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, यूथ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और मैं अब भी कहूँगा कि इसका तकरीबन कोई 7 to 8 स्केल दूंगा मैं अभी भी, कि यूथ इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इनलाइटन भी कर सकती है और बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच भी कर सकती है। और इवन तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए हैं कि बाकायदा यूथ एनवॉय जो है, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के यूथ एनवॉय स्पेशली वर्क कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूथ यूनाइटेड नेशंस के अंदर। लेट मी कोट यू सम वेरी important in that, अपना जैसे कि you will be sure carry on Fawad bhai, can you hear me? yes go on So I was asking कि how can youth participate more, like how can we encourage youth, the one or yet, like how to aware them that they can participate in achieving SDGs. Like for example, if there are high class, if there are the people in my university, they don't know about it. So how to explain? And there's a question to you to answer, like दोनों अगर आप mix करें, how educational institutes, especially universities, could play their role in achieving SDGs. So basically, first question is how can youth be encouraged? ज़्यादा क्या है कि रेट चाहिए, तो इसको 10 कैसे, बचा हुआ यूथ को हम कैसे ला सकते हैं? हाउ कैन यूनिवर्सिटीज प्ले रोल इन दिस? देखिए, अवेयरनेस इज़ द मेजर की, आई वुड से एट द मोमेंट। जितनी अवेयरनेस पैदा की जाएगी, जितना प्रमोट किया जाएगा इन तमाम 17 गोल्स को, उतना ही पता लगेगा कि यूथ के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है इसके अंदर। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, या यूनाइटेड नेशन इट्सेल्फ, या यूएनडीपी प्रिसाइजली, या एसडीजी इट्सेल्फ, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशंस हैं, फिर उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनडीपी जो इसके ऊपर प्रिसाइजली इस पर काम कर रही है, फिर उसके बाद एक और बॉडी जो प्रॉपरली एसडीजीज की बॉडी है वो उसके ऊपर बात कर रही है, और फिर एसडीजीज फॉर यूथ के ऊपर भी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1/3 17 गोल्स के 1/3 जो है वो प्रॉपरली फोकस ही यूथ के ऊपर कर रहे हैं, तो उनका असल मेन फैक्टर ही यही होता है कि वो यूथ को किस तरह से इन्वॉल्व करें। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इस पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है। जैसे कि डॉक्यूमेंट आपको मैं बताता हूँ, यूथ एंड दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये प्रॉपर वेबसाइट है, आप जाइए। 2019 के अंदर सेशन हुआ है, पूरा प्रॉपर एवरी ईयर सेशन हुआ है, 2015 से लेकर 2019 तक सो फार तमाम रिसर्चेस मौजूद है उसके अंदर। फिर उसके बाद मूविंग इनटू दैट, यूएन एंड एसडीजी से एक प्रॉपर हैंडबुक है यूथ के लिए, कि यूथ किस तरीके से प्रिसाइजली इसके अंदर काम कर सकते
सकती है। मूविंग इनटू दैट, प्लान इंटरनेशनल यूके एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ है या आईजीओ आप कह लें, दोनों के हिसाब से वो काम करती है। उनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि किस तरीके से यूथ को एंगेज किया जाए एसडीजीज के अंदर, ठीक है। देन मूविंग इनटू दैट, sdgzone.com के नाम से एक बहुत अच्छी वेबसाइट है कि उसके अंदर प्रिसाइजली बताया गया है कि किस तरीके से यूथ कंट्रीब्यूट कर सकती है एसडीजीज के अंदर। फिर आ जाइए, आपने बात की कि किस तरीके से, कौन से ऐसे फॉरम्स की बात करें, किस तरीके से हम जो है वो यूथ को इसको अंदर इनकरेज करें या किस तरह से बात करें। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आपके यहाँ लोकल एनजीओज़ हैं, चाहे आप पाकिस्तान लेवल पे बात करें, ठीक है, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे। there's a request, can you please repeat the name of the handbook जो आपने इसके लिए बताई? There is a request from our one of our viewers. Okay, I'll repeat that. Starting from youth and the 2030 agenda for sustainable development, and the second one is UN and SDGs. That is a proper handbook for youth. It's called, आप गूगल पे टाइप करें, गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये टाइप करेंगे आप कहेंगे, हो सके तो आफ्टर द सेशन मैं इसके लिंक्स भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद इनको नोट करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, ठीक है। फिर प्लान इंटरनेशनल यूके एक आईजीओ है या एनजीओ, उस हिसाब से दोनों तरफ से वो काम करती है। उनका बाकायदा पूरा प्लान है इसके ऊपर कि यूथ को किस तरीके से इंगेज किया जाए एसडीजीज के अंदर। एंड देन क्या बोलते हैं, sdgzone.com के नाम का है एक प्लेटफॉर्म यानी एक वेबसाइट है, उसके अंदर स्पेसिफिकली फोकस किया गया है कि एसडीजीज फॉर यूथ किस तरीके से होना चाहिए। फिर यूएनडीपी की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, /youth करके लिखें, आपको प्रिसाइजली जो है वो यूथ के एस्पेक्ट बताएंगे। उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताए गए हैं किस तरीके से होना चाहिए। आ जाइए आपके दूसरे एस्पेक्ट सवाल के हवाले से, लाइक कि क्या किस तरीके से यूथ के प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन कौन सी क्या बोलते हैं स्टेप्स लेकर हमारी यूथ इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। देखिए, लोकल एनजीओज़ बहुत सी होती हैं, ठीक है, जो कि लिजिट होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो कि वाकई इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है कि कुछ एनजीओज़ लिजिट और नॉन लिजिट, और पाकिस्तान ने काफ़ी सिग्निफिकेंटली इस गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी इसके ऊपर एक्टिवली काम किया है। द फर्स्ट ऑफ कोर्स इटसेल्फ द यूएनडीपी है, ठीक है, लेकिन यूएनडीपी के साथ काम करने वाली डिफरेंट एजेंसीज भी हैं और डिफरेंट एनजीओज़ भी हैं जो इसके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंटली उसका हिस्सा बनिए, ठीक है। और फिर आपके पास आती हैं क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी अगर होता है तो लोकल पॉलिटिक्स के अंदर भी जाएं, अगर पॉसिबल मैनर होता है। ये बात पाकिस्तान के हिसाब से भी मैं कहूँगा एंड एंटायर वर्ल्ड के हवाले से भी। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा कि आप अवेयरनेस पैदा करेंगे कि बीइंग अ यूथ रोल राइट्स आप अपने करेंगे। देन देयर इज अनदर वन विच इज़ वेरी गुड वेबसाइट, इज कॉल्ड यूथ फॉर पीस। यूथ फॉर पीस आप ज्वाइन करें, मैं तमाम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, youthforpeace.info। इसी में I'm sorry, इसी में एक क्वेश्चन है, I would like you to answer that, कि Please. what are the institutions which are currently on it? As you said, कि potential in, so are there any institutions in Pakistan, uniquely in Pakistan, working on SDG, like on achieving SDG and extracting this potential from the youth? ओके मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, पाकिस्तान लेवल पे यूएनडीपी पाकिस्तान ने जो है वो कामयाब जवान के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया था फ्रॉम 2016 टिल 2020 के हवाले से। बेस्ट प्लेटफॉर्म उन्होंने किया और आप यकीन करें, और उसके बाद जो है एक और स्टार्ट किया था उन्होंने, स्टार्ट किया आई मीन या प्रॉपर तरीके से टाइप करें और देखिए, जस्ट फोकस ऑन यूएनडीपी। मैं आपसे यही कहूँगा, जस्ट फोकस ऑन यूएनडीपी। यूएनडीपी इटसेल्फ बहुत से ऐसे काम कर रही है कि आपको किसी और के, और फिर उसी से ही आपको डिफरेंट एनजीओज़ के हिसाब से मिलेंगे, आपके बहुत अच्छे तरीके से और सिग्निफिकेंटली आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे और आपको पता लगेगा क्या चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा कामयाब जवान के हिसाब से थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं
तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसके ऊपर कवर किया है कि इतना अच्छा उनको आउटपुट मिला, खासकर SDG 1 जो कि SDG 1 के हवाले से उन्होंने इस पर बात की, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने फिर क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से बात की है, और इस प्रोग्राम के अंदर USAID उनको सपोर्ट कर रहा है और जापान की गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट हुई है। आप जाएं, एक्सप्लोर करें। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा। 2018 के अंदर उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे अराउंड 400 यूथ को जो है वो एंगेज किया गया था पार्लियामेंट्स के अंदर। आपको या मुझे पता था इस बारे में? ये कामयाब जवान जो प्रोजेक्ट निकाला उसके थ्रू ही हुआ, और ये UNDP पाकिस्तान करवा रही है। या दूसरा एस्पेक्ट था कि 450 यूथ जो है जिसके अंदर 200 वुमेन, यानी यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की भी बात की है इन्होंने, और 250 मैन के हवाले से उन्होंने डिफरेंट वेरियस इनिशिएटिव लेके उनको उनकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम किया। एक और फैक्ट मेरे सामने से गुजरा था, 838 यूथ्स को, जिसमें 1298 वुमेन और 2249 मैन को वो किया था। तो मेनली फोकस आप UNDP की वेबसाइट पे करें। इट्स ओके, मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करूं। मेनली आप फोकस जो है वो UNDP की वेबसाइट पे करें, और फिर SDGs पाकिस्तान की भी एक वेबसाइट है जो प्रॉपर तरीके से वो तमाम गोल्स की इंडिकेशन दे रहे हैं कि किस गोल के अंदर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक इनटू दैट, यू विल इजीली फाइंड ऑल दोस प्लेटफॉर्म। फिर UN के इटसेल्फ UN जॉब्स की वेबसाइट है, वहाँ जाइए। इंटर्नशिप्स के हवाले से वहाँ जाइए, वहाँ देखिए UNDP के इंटर्नशिप्स बहुत एक्टिवली वो लोग करते हैं। फिर आ जाइए आप, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उनके अंदर उनके पास भी मेंबरशिप्स हैं, वो भी SDGs के ऊपर प्रॉपर करवाते हैं। तो हमारी यूथ के पास, तो आप बहाना ना करें कि भाई कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या किसी हवाले से नहीं है। जस्ट सर्च इट, आप गूगल पे सर्च तो करें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी इस हवाले से जी। ओके, सो जस्ट छोटा सा प्रोसेस बता दें कि लोकल पॉलिटिक्स में जाने का, लाइक वी हैव गॉट अ क्वेश्चन कि लोकल पॉलिटिक्स में जाने का जस्ट प्रोसेस आप बता दें, लाइक शॉर्ट प्रोसेस है, लाइक यू योरसेल्फ आप भी इस फील्ड जैसे आए तो अपने अगर आपको एग्जाम्पल देना है, और एक नौजवान है जो नहीं पता, जिसका बैकग्राउंड इस चीज़ नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है लोकल पॉलिटिक्स में जाने का और आने का? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना एक्टिव होंगे पॉजिटिव साइड पे, देखिए पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है, मैं खुद इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिमेंडस वो काम भी मैंने इसके अंदर हवाले से किया हुआ। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैं थोड़ा बहुत यूके की पॉलिटिक्स में था, मैंने लेबर पार्टी को भी सर्व किया था व्हेन आई वाज इन यूके फॉर 4 years वहाँ पे। तो पॉलिटिक्स का एक अपना मज़ा है, एक हर चीज़, लेकिन बात क्या है कि प्रॉपर तरीके से लिजिट वे में आप ग्रास रूट लेवल पे काम करें। अगेन वॉलंटरी बेसिस पे ही काम होता है। अवेयरनेस जितना आप फैलाएंगे एक सोशल कॉज के लिए, एक लिजिट कॉज के लिए, आप एक काम कीजिए, आप SDGs को ही पुट फॉरवर्ड करें, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट SDGs के ऊपर काम कर रही है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो UNDP के साथ कॉपरेशंस करके जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड नेशंस को भी तो हर कंट्री उसके नॉर्म्स को देखिए, वो भी 193 जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने एंटरटेन किया ना, उनको वेलकम किया, तभी जाके UN फिर UNDP फिर SDGs आगे पुट फॉरवर्ड आए। तो जब तक आप खुद उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे उस हिसाब से उस क्या बोलते हैं टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको मिसाल दी थी कि 17 जो गोल्स हैं, ठीक है, वो इटसेल्फ हर गोल एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है। आप कोई सा भी एक प्रोजेक्ट उठा लीजिए, आप चलिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करें, ठीक है, उसके जो टारगेट्स हैं उसमें से किसी एक टारगेट को आप उठा लीजिए। डोंट यू थिंक कि आपको रिकग्निशन मिलेगी? डोंट यू थिंक कि अगर आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी एक प्रॉपर तरीके से कोई बेहतर रेमेडी दी और वो आपने पुट फॉरवर्ड कर दी, आपने लोकल अथॉरिटीज़ को यहाँ पर, या अपने MNAs या MPs को आपने किया, या आपने UNDP को अपने अप्रोच किया, डोंट यू थिंक कि वो उसको करें, क्योंकि वो तो काम कर ही इसी के ऊपर हैं और वो तो वेलकम करते हैं यूथ को।
कि प्लीज़ आइए एंड टेक द गुड पार्ट इन दैट। इंटर्नशिप्स क्यों रखी जाती हैं? जस्ट टेल मी वन थिंग, इन ऑर्डर टू गिव यू द सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। फिर आ जाइए वही बात पॉलिटिक्स की। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो फ्रंट पे आकर करें, या आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करके पॉलिटिक्स करें, ठीक है? आप इन नेशनल कॉजेज़ को भी, अब आप खुद बताइए, ये 17 जो गोल्स हैं, आपको नहीं लगता कि ये नेशनल कॉज हैं आपके सामने? शायद कुछ गोल्स जो हैं वो पाकिस्तान के एतबार से शायद ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट सारे गोल्स जो हैं वो पाकिस्तान के एतबार से बिल्कुल रिलाई करते हैं, और उस पर प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। तो अगर किसी एक 17 में से किसी एक गोल को अगर आप अडॉप्ट करते हैं, या उसके किसी टारगेट्स को आप प्रॉपर तरीके से अचीव करने के लिए या सिग्निफिकेंटली उनके इंडिकेटर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, यू विल बी रिकग्नाइज्ड। आप उसकी अवेयरनेस करें, आप उसको इसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करें, लाइक योर प्लेटफॉर्म, आपका जो क्लाइमेट चेंज की जो आपकी सोसाइटी है, व्हाट यू गाइस आर डूइंग, you are creating a mindset of a people, you are making up people aware about, Okay, like this is what we have the cause. uh, जी, Bhai, we really appreciate for this highly informative session. So we'll be concluding it by talking few things about our forum. जो हमने बेसिस डी का एक पॉइंट है क्लाइमेट चेंज, जिस पे ये हमारा फोरम है, नेशनल डायलॉग ऑन क्लाइमेट. So how it can play a vital role in this, and also how to choose this person in this field. अगर हम देखा जाए, so how do you see this body going forward, and what do you expect from this body? ओके, पहले तो मैं ये कहूँगा कि Like, अगरचे how can it play vital role in, ओके, आप how आपका can सवाल it कंप्लीट play vital role, and then how to हाँ। see it? फेयर इनफ। देखिए, मैं आपको एक So चीज़ these क्लियर are करूँ two कि Yeah. फेयर इनफ, आई गॉट यू। इवन इफ इट्स पॉसिबल, मैं ये कहूँगा कि जो आपकी सोसाइटी है, इसके विजन को थोड़ा सा ब्रॉड करें, सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस ना करें। आप लोग तमाम SDGs के ऊपर फोकस करें, आप लोग सारे 17 गोल्स को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करें, और इसका जो विजन है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करें। दूसरी बात, आप जो है पहली फुर्सत में एक बहुत बड़ा फोरम है, ठीक है, जिसके अंदर अराउंड 700 ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, थिंक टैंक्स, रिसर्च एंटिटीज़, सब के सब उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, विच इज़ कॉल्ड, अगेन मैं रिपीट करूँगा, एक बहुत बड़ी जो है वो नेटवर्क है दैट वर्क्स अंडर द यूनाइटेड नेशन। और इवन उसके जो डायरेक्टर हैं, हिज नेम इज़ प्रोफेसर जेफरी सैच, ठीक है, ही इज़ एक्चुअली द स्पेशल एडवाइज़र ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, स्पेशली फोकस ऑन द SDGs. That network is called Sustainable Development Solution Network. उसके आप मेंबर बने, आपकी जो सोसाइटी है उसके प्रॉपर तरीके से मेंबर बने, बिकॉज आप लोग जो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से आप लोग एलिजिबल हैं उस चीज़ के। और अगेन थोड़ा सा विजन ब्रॉड करके सारे गोल्स को लेकर आए सामने, या इधर कि एक और सोसाइटी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो सोसाइटी है दैट कम्स अंडर NED यूनिवर्सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? आप लोग NED यूनिवर्सिटीज़ के हैं बच्चे, और उस लिहाज से, और नो डाउट एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म से आप देखें हैं। या तो उसके अंदर एक और सोसाइटी जो कि SDGs के नाम, इफ़ यू नीड माई हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज. I can give you proper set of a scale, I can set the targets, I can set the vision and the goal. But थोड़ा सा इसको ग्रो अप करें और हम प्रॉपर तरीके से काम करें इसके अंदर, बिकॉज सबसे बड़ा इनाम मसला पता है क्या है? और अगर मैं अभी भी कहूँगा, डोंट टेक इट नेगेटिव, आपके प्लेटफॉर्म से कहूँ कि ये जो क्वारंटाइन भी अगर हम कहेंगे, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट कर जा रहा हूँ, इस पर हमारी यूथ को थोड़ा सा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एंड पे सोचना चाहिए. दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम टू डू समथिंग. प्लीज़ प्लीज़. तो आपका प्लेटफॉर्म, नो डाउट यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. इसी तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी काम कर रहे हैं. तो इसको जितना प्रोमोट करेंगे ये उतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए. सो कमिंग बैक टू दैट कि आपकी ये जो सोसाइटी है इसी के अंदर कोई एक बॉडी फॉर्म करें.
या एक और सोसाइटी फॉर्म करें जो प्योरली तमाम 17 गोल्स के ऊपर काम करे, क्योंकि ये जो नेटवर्क है मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है और ग्लोबल डिस्कशंस होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, लोकली, नेशनली, रीजनली प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। अब जैसे कि हमारे लोगों का एक फुदगान क्या है कि यार मेरे अंदर एक तरह से टैलेंट है लेकिन उसको सही तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता, तो इन प्लेटफॉर्म से रिकग्निशंस मिलती है। आप शो करें इन प्लेटफॉर्म्स पे, आप क्रिएशन की तरफ जाएं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, एनी टाइम अवेलेबल। आइए, we can work out onto that, inshallah we'll into that. Then there's second on that, एक second entity जिस पे आप लोग रजिस्टर करें, that is global school programs, जो कि पूरे गोल्स के ऊपर, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, तमाम चीज़ों के ऊपर काम करें। तो प्लीज़ ये मैं कहूँगा कि आपकी जो नेशनल डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज है, या तो इसका ब्रॉड करें, इसका विजन थोड़ा सा ब्रॉड करें, ठीक है, और तमाम 17 गोल्स को कैटर करवाएं और फिर इन सोसाइटीज़, इन नेटवर्क्स का हिस्सा बने, ताकि जो कॉज आप लोग लेकर चल रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, बीइंग द फ्रंट लाइनर, उसको प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए। इनाम, बिलीव मी और नॉट, मैं आपको बताऊं, अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरीवेयर, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हाउ यू कैश दोज अपॉर्चुनिटीज़। नाउ थोड़ा सा अगेन मैं अगर आपसे थोड़ा सा टाइम मांगूंगा, मॉडल यूएन के हवाले से अगर मैं आपकी बात करूं, 11 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, इस फील्ड को, इसको सर्व करते हुए। एवरी सिंगल डे आई एम लर्निंग, एवरी सिंगल कंट्री की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और वो कर रही हैं, कभी किसी कंट्री के हवाले से रिकग्निशंस, कभी किस कंट्री के, तो क्या दैट वाज अ अपॉर्चुनिटी दैट आई मैनेज टू कैश इट। तो क्यों नहीं हमारे लोग, क्यों नहीं हमारे यूथ इन चीज़ों को फर्दर करें। इफ़ यू नीड गाइडेंस, आई एम अवेलेबल, इफ़ यू नीड एडवोकेसी, आई एम अवेलेबल। मैं क्यों अपने आप को एसडीजी एडवोकेट कहलाऊंगा जब तक मैं प्रॉपर तरीके से उस एसडीजीज को पहले अपने लोगों या वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली उसको लेकर जाऊँ। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अपनी इस सोसाइटी को और प्रोलॉन्ग करें, और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ और एसडीजीज के और इश्यूज पे भी लें, या उसको ब्रॉड विजन करें, या इसके साथ इसकी सब बॉडी क्रिएट करें जो तमाम एसडीजीज के ऊपर फोकस करें। और इस पर्टिकुलर सोसाइटीज़ को इतना एक्टिव होना चाहिए कि बैक टू बैक आप एसडीजीज़ के ऊपर सेशंस करवाएं, वर्कशॉप्स करवाएं। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तहत कह रहा हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोशिश करें एसडीजीज़ की एकेडमीज़, एसडीजीज़ की सोसाइटीज़ क्रिएट करें। इफ़ यू नीड माई हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप आए तो सही, मैं तैयार हूँ, व्हाट्सोएवर, नो प्रॉब्लम, मिलकर काम करें, कुछ हम कर सके अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने यूथ के लिए। इट विल बी ऑनर फॉर मी, ऑफ कोर्स, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के हवाले से। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से बात करूँगा कि जो आपकी पर्टिकुलर सोसाइटी उसके लिए है। इनाम, कैन यू हियर मी? Hello. Hello. I guess there is some problem with the connectivity, if I'm not wrong. Anyhow, I guess people are still viewing me. There is no problem at all. The best thing for this SDGs, I must say, अगर मैं इसको conclude करूँ या इसके ऊपर इस तरीके से बात करूँ कि किस तरीके से इसको अचीव किया जाएगा, क्या चीज़ है, जिस तरह से ये तमाम गोल्स स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि एक्सट्रीम जो इश्यूज़ हैं, ये कॉजेज़ हैं, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3 और 4 और इवन 5 के ऊपर, ये एक इश्यूज़ हैं पूरे तमाम चीज़ों के हवाले से। और सब चीज़ों के क्या है कि आपको ऑफ SDG इज दैट के सारे 17 गोल्स एक तरह बताया गया है, और फिर 17 के गोल के अंदर जो है वो उसकी पार्टनरशिप्स बताई गई है। और नो डाउट जो 21st सेंचुरी है, या नो डाउट जो 2030 तक आप एजेंडा सेट करते हैं, या 2030 एजेंडा है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द ग्लोबलाइजेशन।
दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दी सिनर्जीज, किस तरीके से कंट्रीज़ आपस में जो है सिंक्रनाइज रहें, ग्लोबल पार्टनरशिप्स की बात करें। यही एक इस चीज़ की, इस पर्टिकुलर SDGs की ब्यूटी है कि इसमें 3 पीस के ऊपर बात की जाती है, आई मीन पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। इन तीनों चीज़ के ऊपर जो है वो बात की है, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल भी आ जाता है, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी बात आ जाती है, और फिर इकोनॉमिक बेनिफिट के हवाले से भी बात आ जाती है। और यही बेंचमार्क है एजेंडा 2030 के हवाले से भी, जिसको एक लार्जर यू कैन से यूनिवर्सल पीस और लार्जर फ्रीडम के हवाले से बात किया जाए। यही वजह है कि तमाम 193 जो क्या बोलते हैं मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया और इसके ऊपर प्रिसाइजली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग आई वुड से। और फिर 169 उसके टारगेट्स हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको और लेकर चलूँ, जिसमें मैं वाकई कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, एक फ़ेज़ है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टास्क भी हैं, ठीक है, लेकिन बात जब सिनर्जीज़ की आती है, बात जब पार्टनरशिप्स की आती है, तो वो पार्टनरशिप्स लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक आती है, ठीक है, दैट इन्वॉल्व योर गवर्नमेंट, दैट इन्वॉल्व एवरी गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, that involve also the business and the civil society, and in fact that involve every one of you. It is no doubt indeed a very exciting journey. ये एक बहुत बड़ी एक्साइटेड जर्नी है, ठीक है, और मैं यही कहूँगा एट द एंड कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन जितना हम वेल बींग होकर या जितना हम कॉपरेशंस करके इजीली इसको करेंगे, इट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। और अगेन जितने नाम का इंटरनेट बंद हो गया है, तुम कंक्लूड कर दो जल्दी से। that will be really fine, I would say that तमाम चीज़ें होंगे। It was very very nice जी to हरी, have you. It was very very nice to have you with us on the platform, Fawad bhai. And thank you very much. I'm very sorry. I'm very sorry that Inam ka internet connection ka issue tha, so I had to come on, and It's intervention okay, was no worries. unplanned. It's okay, Intervention no was worries. totally unplanned. It's With okay, that it's we'll okay. conclude. With that we'll conclude, and we are very very thankful that you took out time for us, and you took out time for It's an our honor for me. followers, and give them some insight regarding the sustainable development goals and how these goals align with the agenda of national dialogue on climate change, and your insight regarding NDCC and how we can improve our approach towards solving and Indeed. towards including the youth of Pakistan. It was very nice to have it. So till then, It's an honor for me. हम session conclude करते हैं यहाँ live, and we'll talk at the back. Allah Thank you very Hafiz. much. Allah Hafiz.